you all. Apart from being one of our favorites, Professor Samish Dalal, he specializes in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. He has taught more than 5,000 students of family business and has touched base with more than 800 family businesses. He's an MBA from University of Queensland, and he has also studied at Harvard Business School. He's a TEDx speaker and has trained more than 3,000 undergrads and postgrad students for their career planning. Well, that's Sami, sir, for all of you. Sir, over to you, please. Thank you, Almas. Thank you very much. And I am sincerely appreciative of the way you introduced me. Thank you very much. बड़ा अच्छा लगता है कोई अपने बारे में इतनी तारीफ करता है तो दिल से अच्छा लगता है. So guys, welcome everyone to this wonderful session. So thanks Deepal ma'am, thanks Almas ma'am, and thanks Tejal ma'am for setting up this. It's a very important occasion for this event. आज के दिन के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों ये ऐसा इवेंट होता है और किस तरह का इसका मतलब है. बट बिफोर वी गेट इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यस्टरडे की एक घटना बताता हूं. यस्टरडे इवनिंग आई वाज हैविंग अ सेशन विद ए ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन इन बैंगलोर. एंड ऑब्वियसली आप लोग को मालूम है इट्स नॉट गोइंग टू बी द पर्सनल सेशन, इट वाज ए मोर ऑफ ए ये ऑनलाइन जूम वाला सेशन. उसमें एक इंटरेस्टिंग बात निकली कि सर small and medium sized enterprises के लिए what is the most critical thing? And that's my question to all the wonderful participants today present here. I can see a huge number of people saying ready with their answers and responses. So मुझे एक simple question आप लोग को पूछना है, and that is my question. Guys, remember that, and you have to answer in the chat box. आपको लोग को chat box में type करने का है the answer, and the question is that what is the most important element for a family managed business or a MSME? MSME and family business is almost aligned together. सबसे critical, सबसे important चीज क्या है for a family business, guys? Come on, quick. One element, one, just one thing. Any one thing you will feel that's most important, just type it out, guys. Quickly. I want a response, everyone. Quick, start typing it. One, Dhananjay Agrawal says management. Dhananjay, super, fantastic. Shilpa Bapna says trust. Harsh Jain says according to two things, manager, finance, and art of selling. Okay. Heth Patel says financials. दो जन ने finance का बोला. Guys, आप fundamental में जा रहे हैं. आप उसके effect में नहीं जा रहे हैं. Let's go to the effect of it. What is the most critical in a family business, guys? Most critical. Critical मतलब जिसके बिना चलता नहीं है. I hope you guys understand. I mean, very second wave जब गया तो oxygen became the most critical thing. So critical, सब उसके बिना नहीं चलता है. मतलब just remove that and that person is finished. Something like that. Adapt. Harsh Jain, very good, very close to the answer. Adaptability, fantastic, very good. हितार्थ बेटा sustainability बाद में आएगा, पहले कुछ और होना चाहिए. Think about that single bit element. Clue. I want to give a clue. Wait. I want to give a clue. Think on the lines of Harsh Jain. Think on the lines of Harsh Jain. उसके लाइन पे सोचना शुरू करो, guys. It's going to be a very interesting thing. Very interesting thing. Harsh Jain के लाइन पे सोचना शुरू करो, and that will be one of the very good clues for you guys to think about. Very important, guys. Think about it. So the idea. Anybody else? Anybody? Technology? No. Anybody else? Quality? Naman Sood. हर्ष जैन के लाइन पे सोचो. अडेप्टेबिलिटी का दूसरा अच्छा वर्ड कौन सा होता है इन अ फैमिली बिजनेस? हमारे डॉक्टर एम एल श्रीकांत, हमारे डीन सर का ये वर्ड था. इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट वर्ड्स, गाइस. एंड वो वर्ड मैं आप लोग के मुंह से निकलवाना चाहता हूं. हीत पटेल, वेरी क्लोज. अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी, सुपर फैंटास्टिक. बहुत करीब आ चुका बेटा. ऐसे ही वर्ड है और वाई पे ही एंड भी होता है. एंड जो बिजनेसेस इस चीज को कायम कर जाते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उनके बिजनेस को कोई हिला नहीं सकता है. जो इस चीज को कायम कर जाते हैं उनके अपने बिजनेस को कोई नहीं हिला सकता है. दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग. Anybody else would like to come up with an answer on that? And it will be a wonderful thing, guys. The speed at which you can. धनंजय ने दो वर्ड को इकट्ठा किया है, आंसर सेम आने लगा है, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. एनीवेज गाइस, आई अंडरस्टैंड शायद वो वर्ड आपके डिक्शन में या आपके जहन में नहीं आ रहा है, आपके वोकैब में नहीं आ रहा है. डजंट मैटर गाइस, द आंसर इज एजिलिटी.
agility. The speed at which we can respond to the changing market scenario is the word agility. The most important, uska karan hai guys. Let's understand one very important philosophy behind the whole thing. The philosophy is this: any family business started around 10, 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60, or maybe 100 years ago. Things have changed. Environment has changed. और उस एनवायरमेंट को बदलते हुए बंदे को इतना रिस्पॉन्सिव रहना पड़ता है जिसके कारण वो बंदा इमीडिएटली रिएक्ट कर सकता है या समटाइम्स इवन प्रोएक्टिव भी हो सकता है. मैं आप लोग को एक वर्ड, दो वर्ड बताता हूं. ओके, you have to respond in the chat box quickly guys. In business, is it good to be reactive or is it good to be proactive? प्रोएक्टिव का मतलब है मार्केट के पहले सोचने का, एंड रिएक्टिव का मतलब है मार्केट के बाद सोचने का. Dhananjay says proactive, Prathamesh says proactive. Anybody else guys? I have so many people and कोई जवाब फटाफट दे नहीं रहा है. हितार्थ बहुत डिप्लोमेटिक है, नहीं हर्षजन डिप्लोमेटिक है, लिटिल बिट ऑफ बोथ. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये शिकंजी बनाएगा, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक. ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? प्रोएक्टिव गाइस. मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं ना तो थोड़ा सोचना, जस्ट थिंक अ लिटिल बिट. ओके, थिंक अ लिटिल बिट. जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन तो थोड़ा सोचो गाइस, थोड़ा सोचो कि प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, व्हाट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू अडॉप्ट इन द करंट टाइम्स और इवन एनी टाइम. फैमिली बिजनेसेस की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फैमिली बिजनेसेस की बात कर रहा हूं. कम ऑन गाइस, आई वांट टू सी अ रिस्पांस. एनीबॉडी? कुछ लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे. कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस सर. प्लीज टाइप इट आउट यार, टाइप इट आउट. Reactive has certainty. Naman Sood, very close to the answer. Reactive has certainty. Okay. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Anybody else? मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा, ये दीपक मैडम को मालूम है, हम लोग लास्ट टाइम एक वर्ड को यूज कर रहे थे अपने, क्या कहते हैं, नोट पैड को यूज कर रहे थे, इफ रिकॉल. एंड इसी नोट पैड को मेरे को फिर यूज करने का मन कर रहा है. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट. ओके, एंड एक second guys, I'm going to give you something on your, screen share. Here it is. Oh, wrong screen. Right. Okay guys, screen share बंद हो गया. Yes. Proactive and reactive, two big words. Guys, everybody pay attention. Just look at me. Just look at me and pay attention, guys. Just look at me. And ध्यान से सुनना. Family businesses के लिए नॉर्मल अप्रोच क्या होता है कि हम लोग होते हैं प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं, प्रोएक्टिव रहना चाहते हैं. बट प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? वी थिंक अहेड ऑफ टाइम, we think before time. जब हम before time सोचते हैं तो there is a very very high chance that our learning curve is very very expensive. Very expensive. Why? Because ये पूरे लर्निंग कर्व पे जितनी भी कॉस्ट इनकर होएगी वो हमारी कॉस्ट होएगी. प्रोएक्टिव और कोई है ही नहीं. For example, अपना एक बच्चा है, I can see one of you guys, I can just say name of the name, okay? So Kunal Zope करके एक लड़का है और वो सोचता है कि why not I get into the business of a very different type of a garment. शायद वो मार्केट में है ही नहीं, लेकिन कोई और जगह पे है, या कोई जगह पे उसने देखा है, या कभी उसने इमेजिन किया, and it gets into the market. लोगों को एजुकेट करो, उसके बारे में कल्टीवेट करो, उसका मार्केट पेनिट्रेशन करो, खर्च करो, सेटअप करो, एस्टैब्लिश करो, डिस्ट्रीब्यूशन चेन लगाओ, डीलर नेटवर्क लगाओ, ये सब करो, तब तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं. दैट इज योर वेरी लॉन्ग कर्व. इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव. इसने मार्केट में आने से पहले ही सोच लिया था. There's another guy.
ओके, कुणाल जोपेक को देख के दूसरा कोई बंदा मिला, से फॉर एग्जाम्पल धनंजय, धनंजय बोलता है कि कुणाल को करने दो, अपने को कोई जल्दी नहीं है, शांति से देखते हैं, फिर पता चला कि कौन सी गलतियां हुई, एंड उस गलतियों को सुधारते सुधारते मैं एक कर्व बनाता हूं, द कर्व ऑफ रिएक्टिव अप्रोच। गाइस, मैं उस रिएक्टिव वर्ड को ऑब्वियसली डिक्शनरी के हिसाब से मत जाइए, इट्स मोर ऑफ अ मैनेजमेंट जार्गन। रिएक्टिव के हिसाब से मैं उस वर्ड को चेंज कर देता हूं, इट्स कॉल्ड रिफाइंड प्रोएक्टिव। इट इज स्टिल प्रोएक्टिव बट इट इज रिफाइंड। चेक किया, उसको फिल्टर किया, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कौन सा अप्रोच होना चाहिए। वन ऑफ द कंपनीज वी विजिटेड, जब हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट में जाते हैं, इज अ कंपनी दैट इज इन द बिजनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। धनंजय, आई विल कम टू दैट। फर्स्ट मोर एडवांटेज पे 2 मिनट के बाद आता हूं बेटा, अभी इतना रेलेवेंट नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा एक हम एक विजिट किए थे, और विजिट में फ्लेक्सिबल पाइपिंग, मतलब जो घर होते हैं उसमें हम लोग पाइप लगाते हैं पानी के लिए, छोटी सी पाइप लगाते हैं फॉर द केबल टू पास एक्सेट्रा, मतलब कंसील्ड सिस्टम में। तो होता क्या है, होता ये है कि बहुत बार टी लगाने पड़ते हैं, यहां से यहां गया तो टी लगाना पड़ता है। सोचा कि टी नहीं लगाते हैं, ऐसे फ्लेक्सिबल पाइपिंग, मतलब पूरे घर में एक ही पाइप फ्लो होती रहेगी। उस पाइप के ऊपर की साइड पे प्लास्टिक है, अंदर की साइड पे प्लास्टिक है, बीच में लोहा है, और उसके बीच में जेल है, उसके बीच में एडेसिव है जो दोनों को बाइंड करता है, अंदर रबर का लाइनिंग भी है। इन अदर वर्ड्स, मल्टी लेयर्ड कंप्रेस्ड इनटू वन सुपर सिस्टम, ऐसा एक पाइप बनाने का हम लोग ने यूनिट देखा था यहां पे सिलवास में। ब्रिलियंट बिजनेस, बट अपने टाइम से बहुत आगे, बहुत आगे। मारवाड़ी बिजनेसमैन along with a foreign company, they started the business, brilliant business। मैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूं, आज भी रखता हूं। जब भी उन्होंने हमने विजिट किया वहां पे लेके जाते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ इट वो एक बार एक मस्त लाइन भी बोलते हैं कि समीश भाई, समय से बहुत आगे रहते हैं ना, तो लर्निंग कर्व पे काफी समय जाता है। They got also into the GI pipe manufacturing, ट्रेडिशनल पाइप बनाना भी चालू किया। क्यों? क्योंकि मार्केट का डिमांड भी वो आया था। Now this person जो प्रोएक्टिव था, वो आज भी प्रोएक्टिव है, मार्केट में लीडर है, लेकिन उसने ये पाइप बनाना, जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी बनाना चालू कर दिया, विच इज द रिएक्टिव टू द मार्केट। उसने अपने आप को ऐसा चेंज करने का भी रेडी रखा। धनंजय बेटा, फर्स्ट मूवर होने के लिए हमारे पास थोड़ा फंड्स होना चाहिए टू बर्न। टेक्निकली स्पीकिंग, जो मैंने वो रेड कर्व जो बनाया था, वो टाइम इज द टाइम वेरिन हम थोड़ा कैश बर्न नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्लू वाला कर्व था उसमें हम अपना पैसा बर्न करते हैं मार्केट डेवलपमेंट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दी कंपनीज लाइक उबर्स और ओला, उन्होंने काफी अमाउंट इन्वेस्ट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस, perhaps a little bit of their own money, जिसको अपन आज की तारीख में bootstrapping बोलते हैं, and there is a lot of fund of the VCs available. These are two different things, guys. तो जब आपके पास नया बिजनेस आइडिया आता है और आप जब कुछ नया करने जाते हैं और उस वक्त आपको ऐसा फाइनेंशियल पावर मिल जाता है, तब आप शायद कर सकते हो। लेकिन फैमिली बिजनेसेस जो काफी लेयर, काफी समय से जुड़ा हुआ होता है, उनके लिए ऐसा करना लिटिल रिस्की। व्हाई? बिकॉज आपका एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड गुडविल है, आपका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड चीज है। इसलिए रादर देन थिंकिंग कि मैं अपने नाम को कुछ एकदम नई चीज में लीवरेज करूं, उससे तो बेटर है मैं अपने नाम को जो नहीं नया चीज होने वाला है उसको थोड़ा बेटर करूं, रिफाइन करूं, एंड देन मार्केट में आ जाऊं। दैट विल मेक माय प्रेजेंस इवन स्ट्रॉन्गर। यस, we can save a lot of money by seeing other person's mistake. Correct धनंजय, that is exactly the point। इसलिए इसको refined proactive। हमारा एक बच्चा है, दुबई में है, और वो पेपर का ग्लास बनाता है। We all have seen पेपर का डिस्पोजेबल ग्लास। तो मैं उसकी फैक्ट्री पे विजिट किया था, बड़ा मजा आया था। अपने बच्चे की फैक्ट्री पे जाना इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये मशीन ऐसे हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। Then he said कि सर आपको पता है नॉर्मल ग्लास कितने का बनता होगा? He gave me a pricing, I gave me an amount। बोलते हैं सर मेरा 30% कम बनता है, मतलब दी प्राइसिंग में। मतलब तेरे को कॉस्ट सेविंग कैसे होता है?
बोले सर हम लोग ने इतने सारे फैक्ट्रीज को विजिट करके समझा कि विच वर द एरियाज वेयर लैगिंग होता था, विच वर द एरियाज वेयर प्रॉब्लम होता था, विच वर द एरियाज जहां पे लोगों को सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम था, विच वर द एरियाज जहां पे लोगों का सबसे ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होता था, रेवेन्यू लॉस होता था, हमने वो सब कवर कर दिया। इन अदर वर्ड्स, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, फिनिश प्रोडक्ट एंड डिलीवरी टाइम इज द शॉर्टेस्ट। वेरी गुड। बोले हमारा जो मैनेजर है उसको हमने बताया है कि हम लोग कमोडिटी बिजनेस में है भाई, तो वी विल नॉट बी इवन सक्सेसफुल 1% ऑल्सो, 1% ऑल्सो यदि हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे। मेरा मैनेजर भी मेरे साथ अलाइंड है, मैं फुल टाइम बिजनेस डेवलपमेंट करता हूं, वो पीछे काम करता है। बस इमेजिन, उसने अपना मार्केट यूएई के अलावा डेवलप किया है। ही हैज अ मार्केट इन सऊदी, ही हैज अ मार्केट इन कतार, ही हैज अ मार्केट इन कुवैत। बहुत मजा आता है, हम लोग जब दुबई जाते हैं, दीपल मैडम, अलमास मैडम, तेजल मैडम को मालूम है, तो मैं नॉर्मली उसको फोन करके बोलता हूँ चल बेटा मिलते हैं, एंड जैसे उसको मैसेज करता हूँ मेरे को उसका जवाब आता है, सर मैं आज बाहर गांव गया हूँ, या आई एम आउट ऑफ टाउन। मैं बोला किधर है, एंड इन कम्स अप एंड सेज सर आई एम इन कुवैत, आई एम एट दिस प्लेस। मैंने उसको एक दिन पूछ लिया, तो बेटा यूएई मार्केट छोड़ के ये सब जगह पे क्यों जाता है? बोले सर सऊदी का मार्केट कितना मस्त है, सर ये कुवैत का मार्केट कितना मस्त है। एंड देन व्हेन आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे जीएफएमई के बच्चे हैं, उसके साथ मिलते हैं, तो वो लोगों को बताता है कि कैसे इन मार्केट्स को उसने एक्सप्लोर किया, किस तरह से वो मार्केट में घुसा, कैसे इसने यहां पे अपना एक क्या बोलते हैं फुटप्रिंट बनाया। दैट इज द की थिंग। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत बार अच्छा जरूर लगता है, प्रोएक्टिव, मार्केट में पहले अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि क्या वो पहला होना या पहले रहना इज इट अ गुड थिंग और ए बैड थिंग? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट इज ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज बैड, लेकिन फैमिली बिजनेसेस जो अपना खुद का पैसा लेके चलता है ना, उसके लिए चैलेंज है। हमारा एक बच्चा है, 2 दिन पहले की बात है, फॉर ऑल द पीपल जिनको आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट है, आईटी मतलब इनकम टैक्स नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, ओके। तो हमारा एक एफएमबी 12 का लड़का है, लास्ट ईयर से मैं उसके, और मैं तो कब से उसके साथ टच में हूं, 2019 में मिला, 20 में मिला। ही इज कमिंग अप विद अ ब्रिलियंट पेटेंटेड सॉफ्टवेयर। 20 जून को आपको देखने को भी मिलेगा। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होएगा तो मेरे को बताना, विल गेट यू अलाइंड ऑल्सो, कोई सवाल नहीं है। It is the revolution of apps in investments, and that too only for kids investment, सिर्फ बच्चों के लिए। क्या उसने दिमाग लगाया है? He must have invested, Almas madam, he must have invested almost close to 1 CR। मैंने उसको बोला बेटा why don't you look at raising private equity या ऐसा कुछ, या somebody would come as seed funder। You know guys, उसका response, सर हम तो फैमिली बिजनेस वाले हैं, अपने को मालूम है कि इसका वैल्यूएशन आगे चल के अपन काफी रेस कर पाएंगे, तो अभी क्यों कर रहे हैं? जब तक हमारे पास है तब तक तो टिके रहेंगे। He has been approached by couple of investors and they have already valued his app, purely app, okay, purely app at 6 crores already। हाँ जी गाइस, 6 crores with, it's not yet commercial, it's not seen, उसमें कितना रेवेन्यू आएगा ये भी नहीं मालूम है। 6 करोड़ का आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन हो चुका है। Imagine the level at which this guy is performing, but it's a family managed business। और उसने फिर एक कन्फेशन किया, ये भी आपको सुनना चाहिए गाइस, एवरीबॉडी पे अटेंशन, लुक एट मी यार, और कहीं मत देखो, जस्ट लुक एट मी गाइस। एक कन्फेशन किया, एंड द कन्फेशन इज, सर the amount that I had spent earlier, could be also saved। मतलब मैं अब तक 1 CR इन्वेस्ट किया, मैं सिर्फ 50 लाख में भी निपट सकता था, बट आई डिडंट नो कि वो 50 लाख कहां चले गए, क्योंकि दैट वाज द लर्निंग कर्व ऑन व्हिच आई इन्वेस्टेड। You guys understand this very very important thing, very important thing। It is so valuable that you just can't understand that जब कोई फैमिली मैनेज बिजनेस होता है, और जब कोई फैमिली मैनेज बिजनेस जब अपना बिजनेस को स्केल अप करने की शुरुआत करता है या कुछ नया करता है,
तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है. एट द सेम टाइम आजकल के यंगस्टर्स आर मच ओपन, सो दे कैन गो आउट एंड रेज फंड्स. बट summary is this: proactive, reactive, proactive, reactive. Okay, the most important thing is staying response, guys. Staying. सब लोग भाग गए क्या? दीपल मैडम स्क्रीन छोड़ के भाग गए क्या? मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं आ रहा है. Come on guys, type it out. Agile and what? Harsh Jain, agile and what? Come on guys. Proactive, reactive. What is called? Naman Sood, bingo. Naman Sood, bingo. Refined, proactive. That's the right word, guys. That's we call as reactive. Reactive. नहीं guys. तो आज के दिन का जो हमारा सेशन है ना, इसी चीज के ऊपर आधारित है कि द फाइन आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए कि प्रोएक्टिव होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम स्टोरीज एंड मैं चाहता हूं एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड. एवरीवन मतलब एवरी सिंगल पर्सन हैज टू रिस्पॉन्ड. टोटल आई शुड सी 15 आंसर्स और 20 आंसर्स, whoever the number of people are there. I'm going to make the chat का स्क्रीन बड़ा and participant का स्क्रीन closed. Okay, all set. Let me see how we go. एक second. Correct. Let me see how we go. Can everybody see the screen, guys? Can everybody see the screen? I want you guys to respond in the chat box. Can everybody see the screen? Yes, 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 yes. Super, 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 super. Okay. Okay. नहीं, question इसके ऊपर आएगा तो आपको देखना जरूरी है. That's the reason I'm asking that whether you guys can see the screen or not. Okay. Question आपके पास है. Case 1. The business is of FMCG essential products. Huge growth potential. Huge growth potential. सबको दिख रहा है. Enough finance available. Father and uncle happy with what is happening, and they are not in a plan to expand. Yash wants to expand. What should he do? Come on, guys, respond. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. The father and uncle are happy, contented कि जैसा है वैसा अच्छा है, लेकिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा है. It's an FMCG essential, finance भी अवेलेबल है. In other words, bandwidth सब कुछ है. अब सवाल आता है कि एक्सपैंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Come on guys, give me an answer. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Should they expand, yes or no? Come on, quickly respond, quickly respond. Naman Sood says expand, Dhananjay says expand. But guys, understand karo, the father and uncle are not ready to expand. How will the youngster Yash explain to them? Yet invest in a bit research and decide accordingly. ठीक है हर्ष? Anybody else? Guys, point समझो. The father and the uncle are not ready for expansion. The बच्चा is excited. It's a very important thing. वो कैसे उनको बताएगा कि कैसे करना चाहिए? It's a very important stage. Come on, they are not excited. Seeing the direct competitor, ठीक है. Anybody else? Anybody else? Seeing the direct competitor. Anybody else, guys? Expand to some other extent and show them result. हितार्थ थोड़ा explain कर बेटा. That's not exactly the answer. ठीक है. Explain the father and uncle about future market. Naman, the father and uncle have been in the market for more than 30 years. पैसा कमा के शांति से बैठे हैं. रिकरिंग इनकम है. मार्केट एस्टैब्लिश्ड है. सब कुछ अपनी जगह पे है. देयर इज नो इशू. इन अदर वर्ड्स, तुम ऐसा मान लो कि सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके फादर बोलेंगे बेटा सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों छेड़े, क्यों छेड़े? वाई अननेसेसरी ट्रबल ट्रबल यार. मतलब क्यों हम लोग प्रॉब्लम ले ले अपने ऊपर? थिंक अबाउट इट. एनीबॉडी एल्स गाइस हु कैन हैव अ आंसर for that? Looking for growth in a new market, not to expand to their full capacity, expand a little bit and show the result. Okay, Hitaj says
थोड़ा इंक्रीमेंटल बेनिफिट दिखाओ. Anybody else, guys? Anybody else? Anybody else? It's interesting. I can see a wonderful set of responses. Fantastic. Anybody else? Anybody else? I want to see how many of you tell father about significance of upgrading. Very good, Naman. You and Hitat Patel are almost close to the right answer, guys. Anyways, ये आप लोग का केस नंबर 1 था. मुझे कोई टेंशन नहीं है. I am going to give you a lot of such doses today. केस 2 पे जाते हैं. ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए. The business is construction of residential flats in Gurgaon. Currently, badly hit. Huge loan piled up. हम सबको मालूम है आज की परिस्थिति बहुत खराब है. Personal funds also dried up. The property is at a very good location. Now comes across a guy who says, I will bail you out of the crisis, but you must give me all the construction license and rights. What should Raj do? ये लड़के का नाम राज है. What should Raj do? What should Raj do? I'm going to put the screen again and giving you time for you guys to think through. The business is construction of residential flats in Gurgaon. Currently badly hit. Huge loan piled up. Personal funds also dried up. The property is at a very good location. Now come across a guy who says, I will bail you out of the crisis, but you must give me all the construction license and rights. What should Raj do? Let me see how many people are saying that. Negotiate. Okay. He should give the rights, but in a very thoughtful way. Dhananjay, rights hota hai beta. It's manufacturing, construction rights. It just goes. But पैसे दिया, rights गया, stamp लगा देते हैं, so that if any liability comes, they are not onto Raj. Okay, ठीक है. He shouldn't give all the construction. He could do negotiate for 50-50. But Heath, that guy is not ready to negotiate. Heath, that guy. He's not ready to negotiate. Come on, guys. He's not at all ready. Rather than doing that, list your properties at a discount, even if it means just breaking even. Okay, ठीक है. हर्ष जैन बोल, हर्ष यदि वो डिस्काउंट में बेचने लगेगा तो मार्केट में उसकी गुडविल अफेक्ट हो जाएगी बेटा. Think about it. Raman Sood says, pass on the license, get over with the financial burden. पैसा खुद का भी ड्राई हो चुका है. Harsh Kutia says, Raj should not provide license but give land for construction with holding together. ठीक है. Shrey Tandon says, should give the rights. Okay. Try selling the property that are a good location. Kunal, the properties are in a good location, but construction पूरा नहीं हुआ है. Under construction में आजकल कोई खरीदने को नहीं तैयार है. ये अलमास मैडम ने अभी नया फ्लैट लिया, लेकिन कंप्लीट था इसीलिए. वो आधा होता तो नहीं लेती, बेचारी जाएगी कहाँ रहने के लिए. देखो वो भी अभी मुस्कुरा रही है. बराबर है सर, है करेक्ट है. वेरी गुड. Try, you should sell some now because some funds might come. करेक्ट नमन, वो अभी बेचना जरूर चाहता है, लेकिन गुड क्या कहते हैं, सस्ते में कैसे बेचेगा. जॉइंट वेंचर करना चाहिए. शिल्पा मैडम कहती है जॉइंट वेंचर, आउटसोर्सिंग द रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ऑलराइट गाइस, 2 मिनट लगा. 11:34 से 11:36 मेरे पास लगभग, ट्रिपल मैडम, तेजल मैडम, कितने ऑप्शंस जनरेट हो गए अपने पास 2 मिनट में? 15 होएंगे, 20 होएंगे. My dear friends, pay attention to this. Everybody, please just look at me. Decision making is a game of options. Decision making is a game of options. ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा क्या लगा है, कैसे लगा है. A lot of parameters get into that. मैं आप लोग को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाऊंगा कि फैमिली बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रियल वर्ल्ड के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेर ऑलवेज डिफरेंट. ऑलवेज डिफरेंट.
एक मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, सॉरी। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड विथ अ यस। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड विथ अ यस और नो, मतलब सॉरी ऐसा रूल नहीं है यस। ये तेजल मैडम, अलमास मैडम और दीपल मैडम के लिए भी एप्लीकेबल है। सब लोग रिस्पॉन्ड करना, सब लोग। मैं रिवाइंड करूंगा इन सब की लाइफ को थोड़ा, आपको भी सबको। आप में से कितने लोगों ने अपने फादर, ग्रैंडफादर, मामा, चाचा, मम्मी, बुआ, आंटी, दादी, इनमें से किसी को भी ऐसा बोलते हुए सुना है? लिसन टू दिस लाइन। बेटा मुझे लगता है कि ये महीने है ना, ये इंसिडेंट, ये इवेंट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अभी डिसीजन राइट नहीं है, बाद में करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम अक्रॉस दिस लाइन? क्विकली गाइस, मुझे लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम अक्रॉस? तेजल मैडम says every time. Okay, Kunal Zope says me. Yes, okay, that says me. Yes, very good. Deepak Joshi says yes. Okay, Heath Patel says everybody. Okay, दूसरी एक लाइन होती है कि मुझे लगता नहीं है कि अभी हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। How many of you have come across such lines? मुझे लगता नहीं है कि अभी हमें ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। बच्चा बोलता है पापा अपन फॉरेन जाते हैं ना, ये महीने, मई महीने में मजा आएगा। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि दीदी भी तब तक फ्री हो जाएगी, डन करते हैं। एंड एक काम कर, तू है ना एमिरेट्स की टिकट निकाल। पर पापा अपने के पास पॉइंट्स है इस एयरलाइन में, तू एमिरेट्स की निकाल ले भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ बरोबर है। मुझे लगता है, मुझे लगता है, साला पता नहीं हमको क्यों नहीं लगता है, उनको ही लगती है। इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं मेरी वाइफ को बोलता हूं ऐसा नहीं, मेरे को लगता, तेरे को ही लगता है, मेरे को लगता ही नहीं है। ओके, पर गाइस ये जो लगता है वर्ड है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई फील। इंडियन फैमिली बिजनेसेस हैव कम अप विथ 3 वंडरफुल थिंग्स। यदि आप में से लिखना चाहते हैं तो लिख लो, याद रखना, ये मंत्र है, ये लेसन है जो इंडियन फैमिली बिजनेसेस ने अपने दिमाग में उतार लिया है, प्रोबेबली विदाउट राइटिंग एनीवेयर, विदाउट एनी गोइंग। मतलब हम लोग डिसीजन मेकिंग का, आप वेबसाइट, वो क्या कहते हैं, गूगल पे जाके टाइप करो द फाइन आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिश बोर्ड एनालिसिस, एनपीआर एनालिसिस, ढिमका फलाना एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, लॉजिकल फ्लो चार्ट एनालिसिस। जाके पूछो अपने पापा को, जाके पूछो अपने चाचा को, जाके पूछो अपनी मम्मी को, मम्मी तूने कभी एनालिसिस किया है? एक चपाट देख के चाटा मारेगी। मम्मा कभी किया होता तो तू सामने खड़ा होता, एनालिसिस बात करता है। अरे कोई एनालिसिस पैनालिसिस नहीं, तू जब बड़ा हो गया, हमारे पास थोड़ा पैसा था, हमको पता था कि तू अच्छा सीख सकेगा, हमने तेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख दिया। हम लोग सब तो देहाती थे, हमको कहाँ आता था ये सब। ओके ओके, 15, 17, 20 years later आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं, आपकी माँ ऐसे सुनती है और फिर हंसती है। मुन्ना मस्त बोलता है, नहीं नहीं हमें कहाँ आती है ये। मतलब पता है आपको, ये 20 साल पुरानी बात, जब इसके पापा और हम लोग बात कर रहे थे, हमारे रिलेटिव बोले कहाँ अंग्रेजी मीडियम में रखते हो, हमें तो कहाँ आती थी, पर हमने रख दिया और आज हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लाइन खत्म हो गई गाइस। पर वो 20 इयर्स बाद जो हुआ, उसको 20 इयर्स पहले उस मां को मालूम था क्या ऐसा होने वाला था? नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। एंड दैट इज द रीजन गाइस, आप लोग को 3 फंडामेंटल ऑफ फैमिली बिजनेस समझने जरूरी है। 3 फंडामेंटल। ओके, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं ना, लो लिख लो, मेमोराइज कर लो, मेमोराइज कह रहा हूं। ओके, एंड जाके अपने पापा के साथ बात करो, मम्मी के साथ बात करो, चाचा के साथ बात करो, वो लोग तुमको हंसते हंसते एक ही सेकंड में बोलेंगे, एक ही सेकंड में बोलेंगे। बेटा एकदम तेरी बात सही है, एकदम सही है, तो दिल की आवाज बोला। फर्स्ट लाइन, अफोर्डेबल लॉस।
अफोर्डेबल लॉस, मैं कितना नुकसान बेयर कर सकता हूं, मैं कितना नुकसान बेयर कर सकता हूं। क्या हुआ कि एक बार अपना एक बच्चा, समझो यही टीवी पे लिख रहा है मेरे को हर्ष, तो हर्ष का नाम ले लेता हूं। वैसे एक्चुअली बहुत मजे का नाम है ये हर्ष। जो भी माँ बाप नाम हर्ष रखते हैं, ये दीपल मैडम और तेजल मैडम बड़े अपसेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर अब कोई हर्ष आना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ 12-13 हर्ष को हैंडल किया है। पिछली बैच में, एक बैच में उनके पास 17 नहीं 15 हर्ष हैं, 15। इसलिए कुछ कुछ के तो सरनेम भी सेम हो जाते हैं, तो उनके फादर के नाम से उनको याद रखना पड़ता है। एंड अलमास मैडम जब मुझे फोन करती हैं कि सर हर्ष के साथ फोन पे बात हो गई, मैं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता हूँ। मैं बोला अलमास मैडम, बोलती सर आप खुश नहीं हुए। मैं बोला खुश कहाँ होगा, आप कौन से हर्ष की बात करते हो। एनीवेज चलो ठीक है। तो ये हर्ष है, ही इज सेलिंग वन प्रोडक्ट टू नमन, एंड नमन उससे वो प्रोडक्ट खरीदता है। 20 साल से खरीदते हैं। इस बार क्या हुआ कि नमन उससे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया, उसने प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन प्रॉब्लम हो गया नमन के साथ। बेचारा पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि कोविड आ गया, क्राइसिस हो गया, उसका सेल्स अफेक्ट हो गया, तो उसका इनफ्लो अटक गया है। नमन के दिल में जरा भी खोट नहीं है, सेल्स अफेक्ट हो गया। तब तक ये हर्ष तो अभी ना, मैंने बोला ना 20 साल से धंधा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर्ष की उम्र भी आप 45-50 पकड़ लीजिए। तो हर्ष का बेटा उसको बोलता है, डैड ये आप नमन अंकल को माल बेचे हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। हर्ष हंसते हंसते बोलता है, कोई टेंशन नहीं बेटा, एक ट्रांजैक्शन में नमन अंकल ने पैसा नहीं दिया तो चिंता मत करना। नमन घर का आदमी है, मेरा अपना है, हम दोनों साथ में ग्रो किए हैं। अरे बिजनेस के इतने उतार चढ़ाव हमने देखे हैं कि तू सोच भी नहीं सकता है। गेम ओवर, पैसा आया नहीं आया पता भी नहीं है, लेकिन चलेगा। वाई? कौन सा वर्ड था? अफोर्डेबल लॉस। मैं कितना फटका ले सकता हूं उतना ही बंदा लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा है, आप में से भी बहुत लोग इसके अंदर के कीड़े होएंगे, गारंटीड होएंगे। डैडी क्रिप्टो, ए राम, मेरे को जबरदस्त नफरत है ये शब्द से। क्योंकि एक्चुअली है ना, बहुत बार मेरे को एक भाई साहब, मेरा एक स्टूडेंट है, एंड वी वर डूइंग द क्लासेस इन लोनावला। तो वो लड़का मेरे पास आया, मेरे को आके बोलता है कि सर व्हाट इज योर टेक ऑन बिटकॉइन। मतलब मेरे को नहीं मालूम। एंड ही सेड, अरे आप तो प्रोफेसर है, आपको तो मालूम होना चाहिए। मैं प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे को ये मालूम है कि मेरे को क्या नहीं मालूम है। डू अंडरस्टैंड? आई नो व्हाट आई डोंट नो। बोलते सर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? देख, मैंने बोला मैं ट्रेडिशनल स्कूल वाला आदमी हूं, मैं जो चीज देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, समझ सकता हूं, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, बाकी नहीं करता हूं। सो आई एम सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड फिर उसने मेरे को थोड़ा कुछ समझाया, फिर भी मैं नहीं समझा। 3 साल के बाद मेरा बेटा, डैड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने उसको बोला 25,000 मैं तेरे को देता हूं। मेरी वाइफ मेरे को देख के बोलती, अभी तैयार हो गया? नहीं, अफोर्डेबल लॉस। 25,000 गया तो गया, मेरे को दर्द नहीं होगा। 25,000 से ज्यादा मेरे को दर्द हो जाएगा, और इतना दर्द हो जाएगा। मेरा बेटा मेरे को बोलता है, पर डैड मिनिमम अमाउंट तो मेरे को 2.5 लाख चाहिए। मुझे रहने देने बेटा, रहने देने। 25,000 का 10 टाइम्स कर दिया, तेरा बाप सट्टा देकर निकल जाएगा है। बिटकॉइन बिटकॉइन का तो पता नहीं, लेकिन आई विल बी डिसअपियर्ड इन द थिन एयर। अरे बात करता है। पर एनीवेज गाइस, देयर इज अ रियलिटी टू दिस। अफोर्डेबल लॉस, डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप आता है अफोर्डेबल लॉस। एंड मैं आप लोग को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये अफोर्डेबल लॉस कहां से मेरे पास आता है। ओके, वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। मैं आप लोग को स्क्रीन पे कुछ शेयर करूंगा। एंड सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ अफोर्डेबल लॉस, माय पॉइंट नंबर 1 मैं आपको 2 मिनट में शेयर करता हूं। अफोर्डेबल लॉस के नीचे एक चीज लिखिए, इसके नीचे लिखिए माई स्टेक इन्वॉल्व।
मेरा कितना लगा पड़ा है, मेरी लागत कितनी लगी पड़ी है। हैदराबाद में अपना एक बच्चा है, और वो जो बच्चा है उसके फादर मेरे को बोले कि समीश भाई हमने उनका काम आयरन एंड स्टील का है, पर बच्चे को म्यूजिक का शौक है, ड्रमर है, ड्रमर। न्यूज़पेपर में और मीडिया में भी उसका नाम आया था। उसके फादर ने बोला कि मैं उसके में इन्वेस्ट करने वाला हूं। मैंने बोला कितना इन्वेस्ट करेंगे? तो उसके फादर ने मस्त लाइन बताई, मैं इतना खुश हो गया था। मैंने बोला कि साहब गले लगा लेता हूँ। बोले मैं इन्वेस्ट उतना करूंगा जो मेरे को दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको स्टूडियो खरीद के दे दिया है, स्टूडियो जगह मेरी, बिल्डिंग मेरा, सब कुछ मेरा। कल को उसका नहीं चला तो मैं किसी और को भाड़े पे चढ़ा दूंगा। इट्स स्टूडियो, इट्स ड्रमर स्टूडियो, ओके, जैमिंग सेशन बोलते हैं, वो लोग वहां पे कर सकते हैं। वेरी गुड। मैंने वो लगाया, उसके मेरे बच्चे के फ्रेंड्स ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जो उनको जिस तरह से लगाना था लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अफोर्डेबल लॉस का पहला इंपॉर्टेंट थिंग, माई स्टेक इन्वॉल्व, मेरा कितना पैसा लगा पड़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा कितना पैसा लगा पड़ा है, सो माई स्टेक इन्वॉल्व। पॉइंट नंबर 2, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। द इन्फ्लुएंसर रेफरल, द इन्फ्लुएंसर। दीपल मैडम को वैक्सीन लगवाना था, बड़ा मजा आया मेरे को। दुनिया भर के लोगों को फोन करेंगे, तेजल मैडम को फोन किया, अलमास मैडम को फोन किया, मेरे को भी फोन किया, कौन सा लगाऊं? मैं बोला कोविशील्ड। तेजल मैडम बोला कोविशील्ड, अलमास मैडम बोला कोविशील्ड। बट दीपल मैडम ने अपने खुद के हस्बैंड को पूछा कौन सा लगाए, उसने बोला ये सब बेकार, तो कोवैक्सीन लगाना। वाइल्डेस्ट गेस करो गाइस, वाइल्डेस्ट गेस करो, दीपल मैडम ने कौन सा वैक्सीन लगवाया होगा? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? जस्ट इमेजिन गाइस। अरे टाइप करो, डिसअपियर तो नहीं हो गए? अरे हिताज पटेल लिखता है कोवैक्सीन। अरे कोई अर्श जैन बोलता है बेटा नो वैक्सीन। नहीं नहीं नहीं, ये हित पटेल, हितार्थ पटेल, पटेल पटेल फ्रेंड हो गए, लगता है कोवैक्सीन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है? सिर्फ बात करने वाले लोग, हमारा इन्फ्लुएंस जीरो। हस्बैंड ने बोला कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन, स्टोरी खत्म हो गया, स्टोरी टोटल खत्म हो गया। डिसीजन मेकिंग का सेकंड सबसे बड़ा पिलर ऑफ लर्निंग इज हु इज इन्फ्लुएंसर, हु इज इन्फ्लुएंसर। आपके फादर लोग जब बिजनेस करते हैं वो टाइम पास बिजनेस नहीं होता है गाइस। उनको एक दोस्त मिलने आता है शाम को, और वो दोस्त आके बोलता है अरे रमेश भाई एक काम करो ने, आप अभी तक ये दिल्ली मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किए, करो करो, पर मेरे को उधर कोई जानता नहीं। अरे है ने, अपने मुकुंद भाई है, वो आपको पहचान, उधर एंट्री करा देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रमेश भाई इज इन दिल्ली, मुकुंद भाई से चाय पी रहे हैं। अब बोलते हो डैड आपको कैसे विचार आया दिल्ली जाने का? वो अपने फ्रेंड मिले थे, उन्होंने बोल दिया, और उधर मुकुंद भाई को मैं मिल लिया। लेट अस स्टार्ट, वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इन दिल्ली। आपको तो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं मालूम था, नॉर्थ को स्टडी भी नहीं किया था, मार्केट रेफरेंस भी नहीं था, मार्केट का पल्स भी नहीं था, पेमेंट का अश्योरेंस नहीं था, गारंटी नहीं था, कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे घुस गए क्या? घुस गए। घुस इसलिए गए क्योंकि आपके पास जिस बंदे ने इन्फ्लुएंस किया था वो पावरफुल आदमी है। सो डिसीजन मेकिंग दूसरे लेवल पे, द पर्सन हु इज द इन्फ्लुएंसर। आप गाड़ी लेने का डिसाइड करते हैं, महंगी वाली, मैं सस्ती वाली की बात नहीं कर रहा हूं, महंगी वाली BMW या मर्सिडीज जैसा, मैं इधर से लूं कि इधर से लूं? नहीं नहीं, एक काम करने, इधर से लेते हैं। जैसे मैंने ये स्टोर डिसाइड किया, मैं 4 फ्रेंड को फोन करता हूं, ब्रो तू किधर से लिया? मैं नवनीत से लिया। ब्रो किधर से लिया? नवनीत से लिया। किधर से लिया? नवनीत से लिया। और हमारा सबसे क्लोज जो बंदा हमारे ऊपर कंट्रोल कर जाता है उसको फोन किया, उसका फोन आया, अरे यार आंख बंद कर, तू ऑटो हैंगर से ले लेने और कहीं से मत जा। तुमने 4 जन का नवनीत सुना, फट लेके तुम ऑटो हैंगर गए, जाके लेके आ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो पाइवोटल फ्रेंड ने बोला कि ये लेना चाहिए। गाइस डिसीजन मेकिंग में पहला होता है अफोर्डेबल लॉस, दूसरा आता है इन्फ्लुएंसर, कौन आपके ऊपर प्रभावित करता है। मैं एक हकीकत कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जस्ट लुक एट मी गाइस, जस्ट लुक एट मी एंड पे अटेंशन। थोड़ा डार्क साइड का स्टोरी है इसलिए मैं थोड़ा धीरे हो गया हूं, पर यह हकीकत है।
मेरा एक बच्चा है, उसने 2017 में हमारा कोर्स किया, उसके फादर को मैं मिलता हूं, उसको मिलता हूं, सब कुछ सही जा रहा है। 2019 में एक और बच्चा आता है, उस फैमिली का नहीं, टोटल डिफरेंट, मतलब एकदम ये ए है और ये जी है, ऐसा दो अलग कर दो। थोड़े टाइम के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये जी वाला ए का कॉम्पिटिटर था, फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि कॉम्पिटिटर अक्सर फ्रेंड्स होते हैं। ए का बिजनेस अच्छा हो रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली बिकॉज ऑफ द कोर्स और अपनी मेहनत सब कुछ मिला के। ए ने कभी भी जी को ये नहीं बताया कि उसने किस तरह से अपना स्किल का एनहेंसमेंट किया है, कभी भी नहीं बताया। मैंने बोला कि मतलब ए के साथ थोड़ा ऐसा होने के बाद मैंने बोला कि ये जेड वाला तू जानता है? बोलता है हाँ सर, हमारा एक कॉम्पिटिटर है। तू फिर ऐसा उसको बताया नहीं? सर सिंपल है सर, यदि हम जीत रहे हैं और हमको मालूम है जीतने का मंत्र क्या है, तो वो कंपटीशन को बता के क्या फायदा? कंपटीशन को बता के क्या फायदा? गाइस सोचो कि कब कहां कौन सा कितना इंफॉर्मेशन रिवील करना, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है। हमारे कुछ बच्चे आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं ये कोर्स करूं ना करूं, ऐसा सब उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर 2 साल के बाद आते हैं, बोलते सर आपको पता है इसने किया था। मैं बोला इसने 2 साल पहले किया था। सर हमको पता ही नहीं चला था, सिक्रेटिवली हो गया, सिक्रेटिवली हो गया। गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसीजन मेकिंग में कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है और क्यों करता है। इसलिए इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति का सुनो जो व्यक्ति आपको मालूम है कि जिनको मेरे ऊपर अनस्टिंटेड विश्वास, ट्रस्ट है, अनस्टिंटेड, मेरे को बेदाग विश्वास है, मेरे को बेदाग विश्वास है। एक ओपन कन्फेशन करता हूं। परिमल सर मेरे को बोलते हैं, परिमल सर इज अवर डायरेक्टर एंड द स्टालवर्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, इस कोर्स के प्रणेता। वो मेरे को कभी कुछ करने को बोलते हैं, ओके सर। मेरे एक हमारे दूसरे प्रोफेसर है, उनके जाके सवाल पूछते हैं, मेरे को बोलते समझदार सवाल नहीं पूछते। मैं बोला कि सर सवाल पूछने का जरूरत क्या है? वो हमारे ऐसे दुश्मन थोड़ी ना है कि वो हमको ऐसा कोई खाई में डाल देंगे। अरे वो हमारे हैं, वो गलत थोड़ी ना मार्गदर्शन देंगे, वो सही मार्गदर्शन देंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो सेकंड पॉइंट, इन्फ्लुएंसर। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, जो सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने, मुझे लगता है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, गट फील। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, गट फील। गाइस आपके सामने प्रस्तुत हैं तीन फंडा के ये शीट, प्लीज हैव इट, फोटो, टेक अ फोटो ऑफ दिस, रिकॉर्ड इट, कीप इट विथ यू। फैमिली बिजनेस ये 3 फंडामेंटल पे पूरा आधारित होता है। एंड एक छोटा सा ग्लिम्स आपको मैं देना चाहता हूं। डिसीजन स्टेज 2 है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन, और उसके बाद होता है इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग इम्पैक्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं और डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। फैमिली बिजनेसेस यहां तक जाते ही नहीं है, सॉरी, हाँ, यहां तक जाते ही नहीं है। डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के लिए, जब उस डिसीजन को सही करने के लिए जबरदस्त एनर्जी लगाते हैं, एग्जीक्यूशन में जबरदस्त एनर्जी लगाते हैं, इतनी ताकत लगा देते हैं कि इस डिसीजन को सही करने के लिए दे मेक ट्रिमेंडस एफर्ट, तो इंपैक्ट यानी कि रिजल्ट उनको अपनी फेवर में मिलता है। बट बहुत बार फैमिली बिजनेस के इस जोन को हम नजरअंदाज कर लेते हैं, देखते नहीं हैं कि कितना पीछे परिश्रम गया है, कितना पीछे मेहनत गई है, कितना पीछे होमवर्क हुआ है। गाइस मेनी टाइम्स व्हेन आवर एल्डर्स टॉक अबाउट कि मुझे लगता है ना उनका ये होमवर्क इज ऑलरेडी इनग्रेन्ड, उनका होमवर्क हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी देयर, इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। मेरे को जब कोविड हुआ था
तो मैंने मेरे डॉक्टर को पूछा था कि मेरे को कौन सा इलाज करना चाहिए. ही नोज मी सो वेल, 22 ईयर्स से मेरा इलाज करते, मेरे को जानते हैं. उन्होंने मेरे को एक ही सेकंड बोला कि तू ये कर, तू एकदम ओके हो जाएगा, एकदम ओके हो जाएगा. वेरी सिंपल. उनका होमवर्क ऑलरेडी डन है, उनको मालूम है कि इसके लिए कौन सा चीज है. मेरे एक फ्रेंड है, उसके मदर एंड फादर को हुआ, उसी डॉक्टर ने ट्रीट किया. अभी उनके लिए नया ट्रीटमेंट था. इतना सवाल पूछ के हिस्ट्री कैप्चर कर लिया, उसको ऐसा है, वैसा है, दिखना है, फलाना है, ये वो है, वह पता नहीं कितना हिसाब करते हैं, इतना होमवर्क करते हैं, फिर प्रिस्क्राइब किया, सही पड़ गया. डिसीजन मेकिंग के पहले होमवर्क. फैमिली बिजनेस के ओनर्स का होमवर्क हो चुका है. अभी एक फादर ने मेरे को फोन किया था, मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि समीश भाई, हम लोग अफ्रीका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस टाइम पे अच्छा टाइम है कि खराब टाइम है? मैंने उनको बोला सर अच्छा टाइम है, खाली एक काम करिएगा, वहां पे जो कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अफ्रीका में, कोई वहां पे व्यक्ति या कोई बेस आपके पास है तो उसके साथ मिलके आप काम करिएगा, वो आपको अच्छा रहेगा. है आपके पास कोई कनेक्शन? फिर मैंने उनको 2 कनेक्शंस दिए. 3 महीने के बाद उनका रिप्लाई, सर ये तो बड़ा मजा आ गया. मैंने क्यों? हम लोग जो बेचना चाहते थे वो नहीं बिका, मुझे तो फिर मजा क्या आ गया. अरे नहीं, रास्ता ऐसा खुल गया, उसको जो हमारे साथ और खरीदना था ना, उसने खरीदना चालू कर दिया. इन अदर वर्ड्स, बिजनेस हैज हैपेंड. मैंने उनको फिर हंसते हंसते बोला, साहब बिजनेस नहीं होता तो आपको मेरा वो रेफरेंस बेकार लगता? नहीं सर, रेफरेंस बेकार नहीं लगता और आप भी बेकार नहीं लगते. रादर मेरे को ऐसा पता चल जाता कि और कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है. क्योंकि सर एक बात बताऊं, जब बिजनेस चालू किया था तो हमको मालूम ही नहीं था कि अगरबत्ती के धंधे में इतना काम हो सकता है. हम तो इतने छोटे छोटे काम में थे, लोकल मार्केट में काम करते थे. अगरबत्ती का एक्सपोर्ट हो सकता है, साला आता ही नहीं था, पता ही नहीं था. आज हम वियतनाम से एम्प्टी स्टिक खरीदते हैं, इंसेंस स्टिक खरीदते हैं, उसके अंदर फ्लेवरिंग इंडिया में करते हैं और एक्सपोर्ट अफ्रीका करते हैं, चाइना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. इमेजिन गाइस कि उसको कितना कॉन्फिडेंस था बात करते समय. ये लोग वो बिजनेसमैन हैं जिनकी हिस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं. And because of those ups and downs, उनका decision making has now become a natural instinct. A natural instinct. आप लोग यंग बच्चा लोग हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट ओवरनाइट नहीं आती है, बड़ी मेहनत एंड परिश्रम से आता है, एक्सपीरियंस से आता है. फैमिली बिजनेस के उस पेड़ को, जिसको अपन फादर या अंकल या मदर या जो भी बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करो. उनको बोलो कि आपके डिसीजंस ने हमारी जिंदगी अब तक की सवारी है, फ्यूचर में भी सवारेंगे. और उनके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को सीखो, समझो और फिर अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करो. चैलेंज मत करो, रादर उसका हिस्सा बनो. फैमिली बिजनेस गाइस इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ एटर्नल लर्निंग. एटर्नल मतलब सनातन सीखने का है. उनकी गलतियां, उनके सक्सेसेस, उनके प्लसेस, उनके माइनसेस. मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूं, बड़ौदा में है. वो बंदे ने एक टाइम पे ऐसा बिजनेस किया था कि उसके फोटो के आजू बाजू में इंडिया के टॉप नॉच लॉयर्स होते थे, कपिल सिब्बल टाइप के लॉयर वगैरह उसके आजू बाजू थे. ऐसे उसके पास फोटो मैंने देखे थे. एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. मैं अभी उसको मिला था 1 साल पहले की, 1 साल अगस्त 2020 की बात है. तो मैंने बोला कि ये सब फोटो, बोलते हैं दलाल सर एक टाइम पे हमारी भी ऐसी चांदी हुआ करती थी. तो आपकी लाइफ ही कितनी है, यू आर जस्ट 35. बोले हाँ सर, by the age of 27 I was doing all these things, and by the age of 29 I was backstabbed. 9.5 करोड़ रुपए का मेरे को ऐसा गोची लगा था, खलास हो गया सर, रोड पे आ गया था at the age of 29. मतलब सोचो 27 पे किधर हो, 29 पे धड़ाक सुन.
आज वो बंदा 35 की एज पे once again back in life, back in spirit, and back doing everything, buying properties, doing this, that, etc. बिजनेस बड़ा करना शुरू कर दिया। आपको सरप्राइजिंग होएगा, उसका बेचारे का तो क्रेडिबिलिटी इतना खराब है कि बैंक उसको लोन नहीं देता है। तो मैंने उसको बोला तेरे को बैंक लोन नहीं दे तो क्या जरूरत है, खुद पैसा खड़ा करेंगे दलाल सर। क्यों किसी को लोन नहीं मिलती तो वेल्ले हो जाते हैं क्या? वेल्ले होती। इमेजिन दी पावर माय डियर फ्रेंड्स। एंड जब ऐसे फैमिली बिजनेस के ओनर्स को मिलता हूं गाइस, मेरा विश्वास बिजनेस पे और पारिवारिक बिजनेस पे इतना मजबूत होता जाता है, इतना मजबूत होता जाता है कि हर सेकंड में एक ही दुआ करता हूं, एक ही प्रे करता हूं, एक ही प्रार्थना करता हूं कि व्हाटएवर हैपेंस गाइस, give me that much power and energy so that I can help every family business in the country to do better than before, better than yesterday. With those wishes guys, I wish you all the best. Have a great time, and thank you for your patient listening. I sincerely appreciate Almas madam, Tejal madam, and Deepal madam for setting up this wonderful event and wonderful day. I'm sure you guys will be benefited. हम लोग के पास another 5 minutes है. In case anybody would like to ask any question, you are free to put in any question in the chat box. मेरे से possible होगा तो I'll respond immediately. In case nahi possible hoga, so we may respond to you later guys, but I wish you all the best guys, and please make sure कि हमारे फैमिली बिजनेस फ्यूचर में हम पे नाश करे, फक्र करे, एंड उस फैमिली बिजनेस के लिए जो कुछ बन पड़ता है वो करने की हमारे में तैयारी होनी चाहिए। ओके, डिसीजन मेकिंग इज नॉट समथिंग यू राइट ऑन अ पीस ऑफ एनवलप एंड 4 डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो बन जाएगा। Actually, family business के fine art of decision making is 3 points. Quickly revision. Number 1, gut feel intuition, which is by virtue of experience. Number 2, referrals, which is the virtue of influence. And point number 3, affordable loss, यानी कि मेरा stake कितना involved है वो। With those 3 things, guys, wish you all the best. Have a great time. Thank you very much. God bless you.